اگر پیشاب میں تنگی ہو تو پہلے پانی پی لیں، اس کے بعد پیشاب کریں، اس سے گردے بھی صاف ہو جائیں گے اور تنگی بھی ختم ہو جائے گی۔ کینسر کے مریض کو آم کھلائیں، یہ کولیسٹرول کو متوازن رکھنے کے ساتھ ساتھ کئی بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آتی۔ وزن کم کرنے کے لیے روزانہ جاپانی پھل لازمی کھائیں۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے آنکھوں کی چمک اور موٹاپا کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ روزانہ واک کرنے سے جسم کی جلد لٹکتی نہیں ہے اور انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ سورت واقعہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے سے غربت کبھی آپ کے گھر نہیں آتی۔ کھانے سے پہلے ایک الائچی کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ دہی میں آپ کے معدے کو ہمیشہ صحت مند اور آپ کو ذہنی دباؤ کو دور کرتا ہے اور آپ کے دماغ کو کمزور ہونے سے بچاتا ہے۔ اگر چہرے کے غیر ضروری بال جو شخصیت کو متاثر کرتے ہیں ان سے نجات آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھٹکڑی اور پانی سے اس کی مالش کریں اور غیر ضروری بالوں کو ختم کر دیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روزانہ اسٹرابیری کھانے سے شوگر پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اسٹرابیری جسم کی اضافی چربی اور خون کے چکنائی کو کم کرتی ہے۔ زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں استعمال کرنے سے قبض ہو سکتی ہے اور چائے پینے سے بھوک کم ہو جاتی ہے اور معدے میں گرمی پیدا ہوتی ہے۔ اگر کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو تو کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف کھا لیں۔ سوتے وقت اپنی پلکوں پر سرسوں کا تیل مسلنے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ رات کا کھانا کھا کر سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ رات کا کھانا ضرور کھائیں، چاہے صرف 2 کھجور ہی کیوں نہ ہوں۔ زیادہ دباؤ لینے والے افراد کو معدے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو لوبیا کھلانے سے ان کا دودھ بڑھ جاتا ہے۔ میٹھے پان میں مرٹھی کا ٹکڑا ڈال کر کھانے سے ہر قسم کی کھانسی فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اس سے آپ کو بدہضمی کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ کچی روٹی مت کھائیں، اس سے معدے میں آپ کے زخم ہو سکتے ہیں۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے باتھ روم گندے ہوں گے تو آپ کو بہت جلد بہت ساری بیماریاں گھیر لیں گی، گھر میں پریشانیاں آئیں گی اور رشتہ یا شادی کرنے میں ہمیشہ رکاوٹ ہوتی چلی جائے گی۔ واش روم میں موبائل کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ جو ایک سانس میں پانی پیتے ہیں وہ جلد باز ہوتے ہیں۔ موٹاپا 100 بیماریوں کی ماں ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے صبح نہار منہ لہسن کی 2 ٹکیاں 1 کپ لیمبو کے کہوے کے ساتھ کھا لیں۔ موٹی عورتوں کا وزن 100 کلو گرام وزن 50 کلو رہ جائے گا اور موٹاپا اور جسم کی چربی برف کی طرح پگھلنے لگے گی۔ ناظرین، اگر آپ کی نظر کمزور ہے یا آپ نے کسی کی سگریٹ نوشی چھڑوانی ہے یا آپ کے بالوں کے مسائل ہیں تو ان سب چیزوں میں آپ ٹماٹر کا استعمال لازمی کریں۔ ٹماٹر کا استعمال آپ کو ان سب چیزوں میں بہت فائدہ دے گا۔ پیٹ میں گیس کا بننا اور دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، اس کو روکنا ہے تو خشک دھنیا اور سونف ایک چھٹانگ صاف کر کے پیس لیں اور اس میں 1.5 چھٹانگ شکر ملا لیں اور دن میں 2 بار اسے استعمال کریں۔ نظر کی کمزوری سے بچنا ہے تو 6 بادام پیس کر آدھا چمچ مصری اور سونف کے ساتھ روزانہ کھا لیں۔ لوز موشن کی پرابلم ہے تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں۔ اگر گوشت کو لمبے عرصے تک بغیر فریزر کے فریز کرنا چاہتے ہیں تو گوشت پر نمک لگا کر اس کو دھوپ پر سکھا لیں اور اسے خشک کر کے کھائیں۔ یہ گوشت آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا اور کافی لمبے عرصے تک خراب ہونے کا ڈر بھی نہیں ہوگا۔ اگر اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو دہی کے اندر بادام ڈال کر اپنے ماتھے کی مالش کریں۔ رات کو جو بندے جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کریں، اس سے نظر تیز ہونے لگتی ہے۔ اگر تم ہمیشہ جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی کے اندر کھجور کے 2 دانے بھگو کر منہ میں ڈال لیں۔ جو عورتیں اپنی غذا میں دودھ دہی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ حاملہ عورتوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے کہ بچے کے نشوونما میں یہ ایک اچھا کردار ادا کرتے ہیں۔ گھر میں اگر کسی کو کھانسی کا مسئلہ ہے تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھائیں۔ اگر نیند نہ آ رہی ہے تو 1 سرخ ٹماٹر لیں، اس کو کاٹ کر چینی چھڑک کر کھانے سے بے خوابی دور ہو جاتی ہے۔ ہر کھانے کے بعد گڑ چاٹ لینے سے پیٹ کی ہوا
ठीक रहती है। पानी को उबाल कर इस्तेमाल करने से ज़िंदगी भर कोई बीमारी आपको नहीं घेर सकेगी। बादाम का तेल सर में लगा देने से जुओं का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाता है। माहवारी के दौरान दर्द होता है तो नहाने से गुरेज करें, वरना इससे दर्द और बढ़ जाएगा। खड़े होकर कंघी करने वाली औरतें जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाती हैं। स्किन पर नमक का मसाज करने से आपकी स्किन अंदर तक साफ और क्लीन हो जाती है। कपड़े धोने के लिए जब वॉशिंग मशीन लगाएं तो वॉशिंग मशीन के अंदर नींबू का रस डाल दें। इससे कपड़ों का रंग नहीं उतरेगा और कपड़ों की चमक भी बरकरार रहेगी। अगर नज़र की कमज़ोरी का मसला है तो सोने से कबल गर्दन की पिछली जानब पानी लगाने से नज़र की कमज़ोरी का मसला ठीक हो जाता है। अगर किसी को कब्ज़ का मसला हो जाए तो शोरबे वाला सालन रोटी के साथ खाने से खाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग हर वक्त तेज़ और एक्टिव रहे तो कभी भी पेट भर कर खाना ना खाएं। अगर जिस्म पर ख़ारिश हो तो सफ़ेदे के पत्ते ख़ारिश वाली जगह पर रगड़ दो, ख़ारिश कम हो जाएगी। अगर किसी को मैदे की तज़ाबियत का मसला है तो वो अचार बिल्कुल ना खाए। अगर किसी इंसान को दिल के दर्द का मसला है तो वो मिट्टी के बर्तन में पानी पिया करे। खाना खाकर फ़ौरन नहीं सोना चाहिए, इससे पेट की बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। जहन को तेज़ करने के लिए केले खाएं। अगर किसी बंदे ने अपना वज़न बहुत जल्दी बढ़ाना है तो वो आलू उबाल कर खाना शुरू कर दें। बदन की कमज़ोरियों का ख़ात्मा करने के लिए अनार ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर कान में दर्द का मसला है तो लौंग लेकर सरसों के तेल में जलाएं उसको और रोटी को तर करके कानों में लगाएं। रुई को तर करके कानों में लगाएं। हैज़ के दौरान बेकायदगी का मसला हो तो रोज़ाना 2 खजूर ज़रूर खाएं। जो बंदा तालीम हासिल करने की मुसीबत को बर्दाश्त नहीं करता वो कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, हमेशा छोटे का छोटा रह जाता है। लस्सी में गाजर डुबोकर खाने से आपकी नज़र तेज़ हो जाती है। सफ़ेद ज़ीरा भून कर खाने से आँखों की रोशनी कई गुना बढ़ जाती है। ठंडा दूध पीने से मैदे की गर्मी ख़त्म हो जाती है। अगर बुढ़ापा आने लगे तो नाशपाती का जूस निकाल कर आप पीना शुरू कर दें। शाम के वक्त मीठी चीज़ें खाने से परहेज़ करें। शाम को मीठी चीज़ें खाने से आपके दांत ख़राब हो सकते हैं। शाम को चावल खाने से चर्बी आपके जिस्म के अंदर बढ़ती है। चेहरे पर झुर्रियों की सबसे बड़ी वजह मोबाइल से निकलने वाली नीली शुआएँ हैं। अगर बदन में सुस्ती आ जाए तो सरसों के तेल की मालिश करें और जिसकी पलकें लंबी होती हैं वो लोग ज़हीन होते हैं। जो लोग रोज़ाना कम से कम 2 मिनट चहलकदमी करते हैं उन्हें कोई बीमारी नहीं लगती। अगर आप बहुत दुबले पतले जिसामत के हैं तो रोज़ाना 2 उबले हुए अंडे लाजमी खाएं, इससे जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा जड़ते हैं तो इन्हें उबले हुए चावलों के पानी से धो लें। खाना हमेशा कम खाएं, मीठी चीज़ों से परहेज़ करें, आप पर बुढ़ापा नहीं आएगा। पानी में तुख मलंगा डालकर पीने से ज़िंदगी भर आपको फालज नहीं होगा। गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने से सेहत को फ़ायदा होता है। अगर जिस्मानी थकान महसूस हो तो नमक मिले पानी का 1 गिलास लाजमी पिएँ। जिस घर में गुस्सा करने वाली औरत हो वहाँ बरकत नहीं आती। ज़्यादा गुस्सा करने से इंसान पे बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है। अगर ज़िंदगी भर दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो खाने से पहले पानी का 1 गिलास पी लें और खाने के बाद पानी बिल्कुल ना पिएं। दूध में बगैर चीनी के सब्ज़ इलायची डालकर उबालकर फ्रिज में ठंडा करके पानी पी लें। इससे मैदे की तज़ाबियत और मैदे का अल्सर ख़त्म हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। भुने हुए चने खाने से आपकी हड्डियाँ ऊँट की हड्डियों की तरह मजबूत हो जाएंगी। नाखून काटने के बाद अंगूठे पर सरसों का तेल या जैतून का तेल लगाने से 100 साल तक आपकी नज़र कमज़ोर नहीं होगी और कद भी इंशाल्लाह आपका बढ़ जाएगा। इतना मत बोलें कि लोग तुम्हारी खामोशी का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर खामोश हो जाएं कि लोग तुम्हारे बोलने का इंतज़ार करें। माहवारी के दौरान औरतों को ठंडा पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे दर्द मज़ीद बढ़ जाएगा। अगर माहवारी में दर्द हो तो 2 केले खा लें, दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। शुगर को कंट्रोल रखने के लिए पानी हमेशा मिट्टी के प्याले में पानी पिएं और बेसन की रोटी खाएं। चक्की का आटा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगी। खाने के फ़ौरन बाद ना नहाएं और खाने के फ़ौरन बाद पानी भी ना पिएं। जब तक खाना हज़म ना हो जाए जागते रहें। खाने के फ़ौरन बाद सोने से जिस्म में कई बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। चेहरे के काले तिल ख़त्म करने के लिए रात को
एलोवेरा जेल लगा कर सोया करें। 40 साल से ज़्यादा उम्र की औरतों को माल्टे का रस ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। खून की कमी पूरी करने के लिए हर सुबह एक गाजर लाजमी खाएं। ऐसे लोग जिनका कद ब्लड प्रेशर कम हो जाता है वो रोज़ाना खजूर खाया करें। इसके अलावा लाल चुकंदर का इस्तेमाल भी इसमें बेहतरीन है। अगर रोटी खाते वक्त मुंह में कड़वापन महसूस हो तो जान लो बुखार हमला करने वाला है। सरसों का तेल पिंडलियों पर मसल लेने से बदन की सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। ठंडे पानी के इस्तेमाल से आपके बाल झड़ने लग जाते हैं। खाली पेट नहाओ, जिस्म में गर्मी से बच जाओगे। बिल्ली घर में पालोगे तो दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। अगर इसकी तंगी हो तो सुबह उठते ही नमाज के बाद इस्तग़फ़ार की तस्बीह लाजमी किया करें। अच्छे अखलाक वाले और मीठे बोल बोलने से खुद ब खुद मोहब्बत और लगाव पैदा हो जाता है। इंसान की ज़िंदगी ऐसे है जैसे बादलों की छाएँ, आनी और जाने वाली। अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत की दौलत टूटे हुए दिलों में रखता है, जिसे सोने को वीरान जगहों पर छुपाने के लिए दफन किए करते हैं। सूखी खारिश का मसला है या दिमागी कमज़ोरी का मसला, सुबह के वक्त पानी के साथ 1 चम्मच खसखस पी लें। सब्ज़ टमाटर पट्टों की थकन को ऑटोमेटिक ख़त्म करता है। कच्चे अनार का जूस पियो, पेट इंशाल्लाह कम हो जाएगा। खुश्क जिल्द के लिए 1/4 कप दूध में 1 चम्मच शहद मिलाएं और इसमें 3 से 4 मग्ज़ बादाम का सफ़ूफ शामिल करके लेप तैयार कर लें। जल्दी चिकनी और नरम मुलायम हो जाएगी। मुंह के दानों और ज़ुबान के छालों का इलाज, ये बहुत आम बीमारी है जो मैदे की गर्मी की वजह से पैदा होती है। इसकी वजह से मरीज़ को खाना पीने में बहुत दुश्वारी होती है। जितना मरीज़ परहेज़ करता है, ये बीमारी एक बार आ जाए तो जाने का नाम नहीं लेती। एक आसान नुस्खा अपना पेशी खिदमत है जनाब। पंसारी की दुकान से काला नमक और फटकड़ी बराबर ख़रीद लें और किसी शीशी में डालकर रख लें। सुबह और रात को सोने से पहले इससे टूथब्रश करें। रोज़ाना नींबू और अदरक का पानी पीने से बढ़ता हुआ पेट कम होने लगेगा। खून की कमी हो तो रोज़ाना किशमिश वाला दूध लाजमी पिया करें। अरबी लोग नाव में तेल क्यों लगाते थे? क्योंकि नाव में तेल लगाने से चेहरे पर जुबान में इजाफा होता है। मसवाक दायमी नज़रे के लिए मुफीद है। दायमी नज़रे के लिए मरीज़ जिनका बगलम ख़त्म नहीं होता, अगर वो मसवाक इस्तेमाल करें तो बगलम मुंह से खारिज हो जाता है और दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके इस्तेमाल से नाक की ऑपरेशन और गले की ऑपरेशन के चांसेस भी इंतहाई कम हो जाते हैं। जब शैम्पू सर पे लगाते हैं तो इसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं जो बालों को नरम कर देते हैं और वक्ती खुशबू पैदा करते हैं, लेकिन ये बालों की जड़ों को खोखला करके इंसान को मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार कर देते हैं। शैम्पू जिल्द की कुदरती बीमारियों को नापाक कर देता है। बदहज़मी और भूख की कमी के लिए आधे चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा खाने से पहले पानी के साथ ले लें। अगर चाहें तो सफ़ेद ज़ीरे को पीस कर सफ़ूफ बनाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 इलायची और 1 चुटकी पिसी हुई दालचीनी चबाकर 1 गिलास दूध पिलाने से बच्चों का हाफ़ज़ा इंतहाई तेज़ हो जाता है। अगर रुका पेशाब आने का मर्ज़ है तो 2 तोला तेल रोज़ाना हमरा पानी खाने से मर्ज़ दूर हो जाएगा। जल्द को नरम और खूबसूरत बनाने के लिए 1 चाय का चम्मच मसूर की दाल लेकर 1 चम्मच जैतून के तेल में इतना मलें कि वो सुर्ख हो जाए। फिर इसको पीस कर आधा कप दूध में मिला लें और इस अमेज़े को चेहरे पर इस्तेमाल करें। इस वक्त तक लगा रहने दें जब तक तनाव पैदा ना हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको मल कर उतार लें और पानी से चेहरे को धो लें। चेहरा आपका साफ शफाफ हो जाएगा। अगर अब जिस्म पर दाने हैं या छाले वगैरह हैं तो दूध लगाने से ठीक हो जाती हैं। शर्त यह है कि दूध कच्चा हो। यही अमल खारिश की होने की सूरत में भी किया जा सकता है। खारिश में इंशाल्लाह फ़ौरन आराम आ जाएगा। दिमागी कमज़ोरी का आसान इलाज, खाना खाने से 10 मिनट पहले 1 या 2 सेब के छिलके समेत खा लें। इंशाल्लाह चंद रोज़ में दिमाग की शिकायत दूर हो जाएगी। बारिश के पानी में शफा है। जब भी बारिश हो पानी जमा करके किचन में बोतल में भर कर रख लें। अगर हाथ जल जाए तो फ़ौरन इस जगह पर बारिश का पानी लगाएं, इससे छाले नहीं बनेंगे। शाम को ठंडा पानी पीने से परहेज़ करें। गर्म पानी गले की खराश को ख़त्म करता है। तहकीक कहती है कि
डार्क चॉकलेट ज़हनी दबाव कम करती है क्योंकि इसमें ऐसे अज्जा शामिल होते हैं जो खून की रवानगी को बेहतर बनाते हैं। चारों मगज़ के तेल को सर पर लगाने से आपका दिमाग तेज़ होता है, आँखों के लिए भी मुफीद हैं, सर दर्द के लिए भी इंतहाई मुफीद और सुकून फराहम करते हैं। जिन्हें नींद की कमी का मसला हो वो रात को सर पर लगाएं, उससे गहरी नींद आती है। 2 चम्मच हल्दी में 1 चम्मच खोपरे का तेल मिलाकर पेस्ट बना लें और दर्द की जगह पर लगाएं। थोड़ी देर बाद नीम गर्म पानी से उस जगह को धो लें।